students, in this lecture we will see basics of transient analysis and some of the key points that are related with the numericals based on transient analysis. In few courses, this transient analysis is also known as time domain analysis because we are going to analyze the circuit with respect to time. So x-axis will be time and y-axis may be the current or the voltage across the element. So we have to observe the change in the voltage or current with respect to time. Hence, it is also known as time domain analysis. So, ये क्या definition दिया है? When a network containing energy storage elements such as inductor or capacitor is switched from one condition to another, either by change in applied source or by change in network elements, the response current and voltage change from one state to another state. ये काफी लंबा स्टेटमेंट हो गया है. इजी वे से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये ट्रांजिएंट या टाइम डोमेन एनालिसिस होता है, दैट मीन्स चेंज इन द वोल्टेज या करंट अगर आपको ऑब्जर्व करने का है तो वो सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर तो होने ही चाहिए. दोनों एलिमेंट्स रहेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन आइदर ऑफ दिस टू एलिमेंट मस्ट बी देयर. सेकेंड बोला है उन्होंने कि सर्किट में जब भी आप सडनली वोल्टेज या चेंज इन अप्लाइड सोर्स इज देयर, देन देयर विल बी द चेंज इन वोल्टेज और करंट. तो अगर आप ये पहला सर्किट देखते हैं, सो ये है स्विच and the symbol says that switch is initially open and later on at t is equal to 0 at this instant they are closing the switch. जैसे ही आप ये स्विच करोगे, suddenly this voltage will get applied to this resistor and this capacitor and the circuit will be closed. Now capacitor has to respond in a proper manner to this voltage. Rather, capacitor according to its property it will respond to this source. Okay, so that we have to analyze. Here I have mentioned that how the voltage across the capacitor or the current in the circuit will change when you applied some voltage suddenly. Second उन्होंने इधर बोला है change in network elements. If you observe this thing, ये सेकेंड टाइप का ऐसा न्यूमेरिकल है. सो इसमें क्या होता है, इफ यू ऑब्जर्व दिस पोजीशन, दिस इज नोन एज एसपीडीटी स्विच. एसपीडीटी स्विच का क्या मीनिंग है? सिंगल पोल डबल थ्रो. मतलब इधर स्विच जो है वो दो पोजीशन पे हो सकता है, आइदर इट इज एट पोजीशन ए और बी. एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस थिंग, द एरो इज शोन इन दिस मैनर. दैट मीन्स बिफोर टी इज इक्वल टू 0, बिफोर टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर ये मेरा x एक्सिस है टाइम और लेट्स से ये इंस्टेंट है t इज इक्वल टू 0, सो बिफोर दिस इंस्टेंट, दैट मीन्स फॉर t लेस देन 0, स्विच इज एट पोजीशन A. At t is equal to 0, this switching is taking place, and for t greater than 0, the switch is at position B. तो ऐसे टाइप के जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के रहते हैं, तभी आपको ये अज्यूम करने का रहता है at t less than 0. That means when switch is at position A, it was there for infinite time. तो इसका क्या इफेक्ट होता है वो भी हम लोग देखेंगे. सो इसमें पहले क्या रहेगा, तो पहले ये पार्ट सर्किट में रहेगा. Okay, inductor will respond to this applied voltage according to its property, and when you switch this thing, then naturally the capacitor and inductor again they will respond to this change according to their property. So that we have to analyze. So इसमें मैं बोला था कि change in network elements. So this is the meaning of change in network elements. Okay, so कभी भी ये change हो जाता है, so current and voltage will start changing. Now, if you keep this circuit for infinite duration, t is equal to infinity, let's say, it will reach to its final value, steady state value. जैसे कि अगर आप ये सर्किट देख रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है, अगर आप एक स्विच क्लोज करके रखोगे, नेचुरली एट t is equal to infinity, this capacitor will get charged to this maximum value. वो जो स्टेट रहता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट. So that means nothing is going to change in the circuit and that is known as steady state. अच्छा, पहले क्या था? पहले कैपेसिटर के ऊपर कुछ भी वोल्टेज नहीं था. फाइनल वोल्टेज कितना आने वाला है? तो वो आने वाला है 100 वोल्ट. तो ये जो चेंज होता रहेगा उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट. Okay, so transient means the something is getting changed, and steady state means now the circuit has attained a stable state and the voltage or current is not going to change. इसको बोलते हैं steady state. Okay, चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं तो आपको और आइडिया आ जाएगी.
अभी ये सर्किट दिया है, अभी इधर 100 वोल्ट है एंड 1000 वोल्ट है। इतना तो मुझे मालूम है कि कैपेसिटर starts charging exponentially. So if you are plotting the voltage across the capacitor with respect to time, initially the voltage is 0 and as the time progresses, it will start charging over here. Let's say ये आपने plot किया है for 1000 ohm resistor. Now suppose if I make another circuit and I keep the value of the resistance, let's say 10 ohm, then actually this resistance will offer less resistance in the charging of this capacitor. So in that case what will happen, the capacitor will start charging in a faster manner. Okay, so that depends upon this resistance value. So आपको यही तो एनालाइज करने का है कि अगर आप रेजिस्टर चेंज कर रहे हैं तो क्या रेट ऑफ चेंज होगा, that you have to analyze. So after this I will discuss the network equation with these three elements. So पहला तो रेजिस्टर है and it is quite simple. The voltage across the resistor is given by the formula V of t is equal to R into I of t. Resistor opposes current. Okay, ये तो अपना Ohm's law हो गया. Second one, it is related with the inductor. Now you are applying some voltage and across the inductor and naturally the current will start flowing. And how to write down the voltage across the inductor? So V of t is nothing but L di by dt. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने का है. हाँ, एक्चुअली ये फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी है. इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है? इंडक्टर अपोजेस चेंज इन द करंट थ्रू इट. Okay, inductor opposes change in the current through it. Resistor opposes current through it. अगर इंडक्टर में से लेट से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट अगर वो 4 एम्पियर का 5 एम्पियर करने के लिए देखोगे देन इंडक्टर विल इनिशियली स्टार्ट अपोजिंग दैट चेंज. सो ये उसके प्रॉपर्टी से इधर रिफ्लेक्ट होता है एल डी आई बाई डी टी. इंडक्टर अपोजेस चेंज इन द करंट. ओके, इसके बाद सपोज आपको आई ऑफ टी का इक्वेशन फाइंड आउट करने का है, देन व्हाट यू हैव टू डू? सो 1 बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ v of t dt. ये l इधर ट्रांसफर किया गया है, dt इधर गया है एंड यू आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन. अभी ये सेकेंड सर्किट में आते हैं, इंडक्टर के रिलेटेड ही है और इसमें ये I0 उन्होंने करंट सोर्स में दिखाया है. इसका क्या मीनिंग है कि ये इंडक्टर में से पहले से कुछ करंट जा रहा था. इन दैट केस हाउ विल यू राइट डाउन दिस टोटल करंट I of t? So in that case I of t will be 1 by L integration of v of t dt प्लस दिस करंट I of 0. तो I of t किधर है? सर्किट में दिखा है तो I of t इधर रहेगा, I of t. So current arrives at this junction, it will get splitted into two parts. One part is flowing through this inductor, so that is nothing but this one, and second one is nothing but I of 0. So remember this thing. Now we'll talk about the capacitor. So capacitor का क्या प्रॉपर्टी है? It opposes change in the voltage across it. सो इसके ऊपर से आप करंट थ्रू कैपेसिटर लिख सकते हैं एंड दैट इज नथिंग बट सी डी वी ऑफ टी बाई डी टी. कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस इट. सो अगर इसमें से आपको वोल्टेज का इक्वेशन लिखने का है तो आप लिख सकते हैं वी ऑफ टी इज नथिंग बट 1 बाय सी इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी. डोंट फॉरगेट दिस डिफरेंशियल ओवर हियर. So this is for this circuit. When you apply this voltage, naturally current will be there and that current can be written in this manner. If you know the current, you can write down the voltage in this manner. Now let's say अगर एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वोल्टेज है, so you can show that by a battery over here in series with this capacitor. In that case, how you can write down this voltage? So this total voltage is nothing but addition of two voltages. One is nothing but voltage across the capacitor. So that we know, so that is 1 by c integration of I of t dt plus ये voltage आ जाएगा because elements are connected in series, so naturally voltage addition will be there, so that voltage you have to write down over here. Here I of 0 and V of 0, they are nothing but the current and the voltage initially flowing through inductor and capacitor respectively. Here I will say voltage across the capacitor. Okay. You can remember the properties of these elements. Resistor opposes current, inductor opposes change in the current through it, and the capacitor opposes change in voltage across it. Okay, now how to represent these elements when any change is happening in the circuit? So ये काफी सिंपल है. रेजिस्टर जो है उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. उसको चेंज सडनली स्विच क्लोज करो या ओपन करो, nothing is going to happen with the resistor. Resistor has to be represented as it is.
सेकेंड पार्ट इंडक्टर. सपोज इंडक्टर कुछ सर्किट में है एंड सडनली इफ यू आर अप्लाइंग लेट से वोल्टेज अक्रॉस इट और करंट थ्रू इट, करंट सोर्स connecting across it, then what will happen? Inductor will act as open circuit. So for sudden change, inductor will act as open circuit while capacitor will act as short circuit. So ये ध्यान में रखिए. Sudden change, ये पंच लाइन आपको ध्यान में रखने का है. For sudden change, inductor will act as open circuit and capacitor will act as short circuit. इसको एक alternate way भी है एक्सप्लेन करने का. देखो इंडक्टर का आपको इम्पीडेंस मालूम है एक्सएल. एक्सएल का फॉर्मूला है 2 पाई एफएल. जब भी आप सडन चेंज बोलते हैं दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज हाई. यू कैन से फ्रीक्वेंसी इज नियरली इन्फिनिटी. ओके, किसका फ्रीक्वेंसी? जो आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं एट दैट मोमेंट फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रॉम. अभी आप देखो डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. ओके, इनिशियली कुछ वोल्टेज नहीं है बट आप सडनली ये ऐसा वोल्टेज अप्लाई कर, ये आप वोल्टेज को ऐसे दिखा सकते हैं. सो एट दिस इंस्टेंट व्हाट विल हैपन? A signal is changing from zero level to let's say amplitude A level with a very small duration. So frequency कैसे calculate किया जाता है? Frequency is nothing but 1 by time or you can say 1 by delta t. So within a very short time, ये कितना time है? So this is nearly tending to zero. So infinite हो गया. So ये जो मोमेंट था इधर कितना ये था चेंजेस था, कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स थे? इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. सो अगर आप f इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी. तो वही तो बोल रहा हूं मैं, सडन चेंज है, इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे डिनोट किया जाता है? सो दैट इज नथिंग बट 1 बाय 2 पाई एफ सी. तो सडन चेंज f कितना है? इन्फिनिटी. सो xc कितना हो जाएगा? 0. दैट मीन्स फॉर सडन चेंज कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट. तो ये आप ध्यान में रखिए. सपोज इंडक्टर में से पहले कुछ करंट जा रहा है, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट अ करंट सोर्स ओवर देयर. अगर कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज है देन यू हैव टू शो दैट वोल्टेज सोर्स ओवर देयर. ये ऐसा क्यों? क्योंकि इंडक्टर तो क्या हो जाता है? ओपन सर्किट हो जाता है फॉर सडन चेंज. सो ये इंडक्टर इसके साथ पैरेलल में रहता है बट वो itself it is acting as an open circuit. So ये इधर हम लोग पैरेलल में नहीं दिखाते हैं. वैसे कैपेसिटर कैसे एक्ट होता है? शॉर्ट सर्किट जैसा. और कैपेसिटर इसके साथ किधर आ जाता है? सीरीज में आ जाता है एंड इट इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट. सो ये पूरा सडन चेंज के लिए क्या इफेक्ट होता है दैट आई हैव एक्सप्लेन. नाउ एज यू keep this circuit as it is, then what will happen? So at t is equal to infinity, when the steady state is reached, रेजिस्टर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं, रेजिस्टर जैसे ही बिहेव करेगा. इंडक्टर विल स्टार्ट एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर विल एक्टिंग एज ओपन सर्किट. स्टेडी स्टेट का मीनिंग है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बट स्टेडी स्टेट का एक्चुअल मीनिंग है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे. कुछ भी चेंज नहीं कर रहे मतलब एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो जाता है 0. सो अगर फ्रीक्वेंसी 0 है देन व्हाट विल हैपन? एक्सएल विल बिकम 0. सो वही तो मैं बोल रहा था, अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है सर्किट में देन इंडक्टर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. वही एक्सी का क्या वैल्यू हो जाएगा? अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. तो कुछ चेंज नहीं है तो कैपेसिटर विल एक्ट एज ओपन सर्किट. ओके, सो पंच लाइन ध्यान में रखिए. फॉर सडन चेंज इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट. फॉर sudden change inductor acts as open circuit. For sudden change inductor acts as open circuit. अगर ये आपको आ जाता है then you can easily write down about the remaining elements. चलो अभी ये टाइप के प्रॉब्लम, ये टाइप 1 न्यूमेरिकल में उसको बोलूंगा. और ये टाइप में क्या हो जाता है, देखो आपको पहले आइडेंटिफाई करने का है कि इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा. सो स्विच का पोजीशन देखिए, ये स्विच का पोजीशन कैसे है? इनिशियली ओपन है और उसके बाद ये क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है. सो क्या ये इंडक्टर के अक्रॉस इनिशियली कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है क्या? नहीं. सो जब भी आप ये स्विच क्लोज कर दोगे, आप स्विच कौन से मोमेंट पे क्लोज करते हैं? सो t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज करते हैं. उसके बाद वाला जो इमीडिएट मोमेंट होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो ये 0 लिखते हैं और उसके आगे इधर प्लस लिखते हैं. दैट मीन्स दिस इज द मोमेंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच. अब जैसे ही ये स्विच इधर क्लोज कर देते हैं
Inductor act as, now this is a sudden change. For sudden change inductor acts as open circuit. तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर आपको ओपन दिखाना पड़ेगा. और एक वे है इसको एक्सप्लेन करने का. इनिशियली कितना करंट फ्लो हो रहा है, इनिशियली मींस व्हाट, जब भी स्विच क्लोज कर रहे हैं उसके पहले, तो इसमें से कोई कुछ भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है. तो करंट क्या रहेगा इसमें से जाने वाला, 0 एम्पियर. इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, इट अपोजेस चेंज इन करंट थ्रू इट. तो अगर आप एक क्लोज कर दोगे तो इंडक्टर बोलेगा नहीं, पहले से मेरे में से कितना करंट जा रहा था, 0 एम्पियर. अभी भी मैं क्या ट्राई करूंगा, वो करंट कितना रखने का वो ट्राई करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है 0 एम्पियर रखने का ट्राई करूंगा. और उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपन सर्किट. ओके, तो ये आपको एनालिसिस समझ में आ गया. तो ये टाइप के जब भी न्यूमेरिकल होते हैं, सो अभी आप देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज इनिशियली नहीं है. ओके, सो इसमें आपको कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना कंज्यूम करने का है, पहले 0. ओके, आप स्विच क्लोज करोगे तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट. फॉर सडन चेंज कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट. अभी आप ये सर्किट देखिए, इनिशियली कुछ वोल्टेज ये इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई किया गया है क्या, नहीं. तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आप ये स्विच क्लोज करोगे तो ये सडन एप्लीकेशन हो जाएगा एंड इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट एंड कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. बाद में क्या हो जाता है वो हम लोग वो न्यूमेरिकल्स जब भी आएंगे तभी देखेंगे. मैं पहले आपको ये टाइप समझा रहा हूँ. इसमें देखिए ये आप सडनली इधर अप्लाई करोगे, उसके बाद ही ये इंडक्टर और कैपेसिटर अपना प्रॉपर्टी दिखाएंगे. दैट मीन्स इनिशियली तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज है ही नहीं. ओके, तो आप इधर स्विच क्लोज कर दोगे, देन इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट एंड कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. इधर भी क्या इसमें से पहले से कुछ करंट जाने वाला है क्या, ये इंडक्टर में से नहीं. तो अभी जैसे ही स्विच क्लोज करोगे देन इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट. क्या कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियली कुछ वोल्टेज है क्या, नहीं. और ये क्या, ये वोल्टेज इधर सर्किट कंप्लीशन हो रहा है क्या, नहीं. तो जैसे ही आप ये स्विच क्लोज कर दोगे देन कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. इसमें देखिए ये 2 मेशेस है इसमें, लेकिन ये पहले स्विच ओपन है. ओपन है तो कैपेसिटर और इंडक्टर में से कुछ भी करंट या वोल्टेज उसके अक्रॉस है ही नहीं. जैसे ही आप ये स्विच क्लोज करोगे, दिस इज नथिंग बट सडन एप्लीकेशन ऑफ अ वोल्टेज, sudden change, capacitor will act as short circuit and inductor will act as open circuit. तो वो आपको एलिमेंट को वैसे रिप्लेस करने का रहता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करंट और वोल्टेज. ये सर्किट देखिए स्विच ओपन है. ओके, और फिर एट t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है. जैसे ये स्विच क्लोज हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द सडन चेंज फॉर दिस एलिमेंट्स एंड कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, inductor will act as open circuit and you have to draw that equivalent circuit. तो ये टाइप के न्यूमेरिकल में इंडक्टर और कैपेसिटर इसके अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज नहीं है. आप सडनली वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट एंड इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट. अभी ये टाइप देखिए, ये स्विच देखिए, ये पहले क्लोज था बाद में ओपन हो रहा है. और जब ये क्लोज था तभी क्या हो जाएगा, ये पूरा 10 एम्पियर इसमें से जाएगा. क्यों, करंट विल प्रीफर द लेस रेजिस्टेंस पाथ. हियर द रेजिस्टेंस इज 0 ohm, सो ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन. सो कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज नहीं रहेगा, रादर दिस वोल्टेज इज 0. उसके बाद जब स्विच आप ओपन करोगे, स्विच ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, सो दिस पार्ट will not be there and now the current application will be there and this current application will cause some voltage across this capacitor. but suddenly अगर आप इधर एक current source या current apply कर दोगे then the capacitor will act as short circuit. तो ये ध्यान में रखिए, इधर ये स्विच ओपन हो रहा है लेकिन ये स्विच किधर कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड. किसके पैरेलल में, करंट सोर्स के साथ. तो करंट पूरा इसमें से ही जाने वाला है. ओके, इधर भी वही होगा, ये वैसे ही टाइप का सर्किट है. पहले ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, पूरा करंट इसमें से जाता रहेगा. जैसे आप ये स्विच ओपन करोगे करंट इसमें से जाना स्टार्ट हो जाएगा एंड इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट. ओके, सो ये टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. टाइप 2 में क्या हो जाता है, तो ये ऐसे सिंगल पोल डबल थ्रो वाले स्विच रहेंगे. सिंगल पोल एंड डबल थ्रो, तो एक जगह पे स्विच कनेक्टेड रहेगा
जब भी स्विच पोजीशन 1 पे है तभी अपने को अज्यूम करने का रहता है, उन्होंने दिया हो नहीं दिया हो, स्विच 1 पे है तभी अपने को अज्यूम करने का रहता है कि स्टेडी स्टेट पहुंच गया है। और स्टेडी स्टेट में ध्यान में रखिए कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट एंड इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। तो जब भी ये स्विच पोजीशन 1 पे है तो आपको अज्यूम करने का है कि ये कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट है करके। ये रेजिस्टर तो तभी नहीं आएगा, ये रेजिस्टर कभी पिक्चर में आएगा जब ये स्विच पोजीशन 2 पे जाएगा और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो स्विच है ये पोजीशन 1 पे इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए था और उसको बोलते हैं हम लोग कि स्टेडी स्टेट पहुंच गया है। स्टेडी स्टेट पहुंच गया है ऑलरेडी, दैट मीन्स कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा 30 वोल्ट तक और उसके बाद आप ट्रांजिएंट करोगे। ट्रांजिएंट का मीनिंग है कि आप स्विच जो है वो पोजीशन 1 से 2 पे लेके जाओगे और बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिएंट नाउ कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। बट क्या आप कैपेसिटर के अक्रॉस को वोल्टेज चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे? तो कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किट रहेगा बट आप सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स बता सकते हैं। ये देखिए इधर मैंने दिखाया है कि कैपेसिटर इज एक्टिंग एज ए शॉर्ट सर्किट बट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल रिमेन सेम। ये उसका मीनिंग हुआ। ओके चलो, ये भी वही वैसे ही टाइप का प्रॉब्लम हो गया। सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है, पोजीशन 1 पे है तभी हम लोग समझ लेने का कि ये स्टेडी स्टेट में पहुंचा है। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या हो जाता है? इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो इधर ये शॉर्ट सर्किट रहेगा और उसमें से कुछ करंट फ्लो होते रहेगा। लेट्स से करंट का वैल्यू 20/10 दैट इज 2 एम्पियर। उसके बाद स्विच जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपको इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट बट 2 एम्पियर का सोर्स जो है वो उसके अक्रॉस रहेगा एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द करंट बाय अप्लाइंग केवीएल ओवर हियर। सो ये टाइप के न्यूमेरिकल जब भी ये सिंगल पोल डबल थ्रो वाले स्विचेस रहते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसके और ये जो कैपेसिटर है इसके साथ ये वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है या ये पूरा सर्किट इधर कंप्लीट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये टाइप 2 न्यूमेरिकल है जिसमें क्या हो जाता है, पहले स्टेडी स्टेट रहता है फिर ट्रांजिएंट होता है और फिर ये ट्रांजिएंट के बाद फिर से स्टेडी स्टेट पहुंचने वाला रहता है। ओके, अभी ये टाइप के न्यूमेरिकल देखें। इसमें क्या है, देखो ये सर्किट पूरा पहले से ही कंप्लीट है। ओके, दैट मीन्स एट t इज t लेस देन 0, दैट मीन्स बिफोर स्विचिंग। इधर भी देखिए ये स्विच क्लोज हो रहा है। ओके, ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो ही स्विच है। t लेस देन 0 आपको अज्यूम करने का कि स्टेडी स्टेट पहुंच गया है। ओके, और फिर ये जब क्लोज होगा दैट टाइम द ट्रांजिएंट विल बी देयर एंड इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट। व्हाई? बिकॉज इंडक्टर वोंट अलाउ द करंट थ्रू इट टू चेंज। सो इसके अक्रॉस आपको एक करंट सोर्स दिखाना पड़ेगा। तो ये कैसे टाइप का न्यूमेरिकल हो गया? ये टाइप का न्यूमेरिकल हो गया कि इंडक्टर में से पहले से कुछ करंट जा रहा था, उसके बाद ट्रांजिएंट किया तो इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन सर्किट बट उसके साथ पैरेलल में आपको क्या दिखाना पड़ेगा? करंट सोर्स दिखाना पड़ेगा। ओके, ये टाइप के न्यूमेरिकल में देखो क्या है, तो पहले से ये स्विच जो है ये देखो ये सर्किट इधर से कंप्लीट है या फिर आप बोल सकते हैं ये पार्ट से कंप्लीट है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इंडक्टर जो है दिस विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट और ये कैपेसिटर जो है ये ओपन सर्किट जैसा एक्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिएंट होगा। हाँ, उसके बाद ट्रांजिएंट होगा। ट्रांजिएंट मतलब ये स्विच क्लोज किया जाएगा और ये स्विच क्लोज होने के बाद फिर से इंडक्टर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा बट पैरेलल में करंट सोर्स आ जाएगा। कैपेसिटर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट लेकिन इसके साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। ये भी कैपेसिटर जो ओपन सर्किट करके था वो अभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा लेकिन सीरीज में क्या आ जाएगा? वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। तो ये टाइप के न्यूमेरिकल थोड़े ध्यान से कीजिए। ये इसमें क्या है, जब ये स्विच पोजीशन 1 पे है तो ये देखो ये पूरा ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। ओके, सो सर इसमें स्टेडी स्टेट ऑलरेडी पहुंच गया है, ये आपको ध्यान में रखने के। और स्टेडी स्टेट जब भी पहुंचता है तो इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट और तो इधर ये शॉर्ट सर्किट रहेगा और करंट कुछ फ्लो होते रहेगा। फिर आप ट्रांजिएंट करोगे तो क्या हो जाएगा? जो शॉर्ट सर्किट वाला इंडक्टर था वो हो जाएगा अभी ओपन सर्किट बट उसके अक्रॉस क्या आ जाएगा? करंट सोर्स आ जाएगा। तो ये टाइप के न्यूमेरिकल्स थोड़ा केयरफुली सॉल्व करने के रहते हैं।
अभी ये जो टाइम डोमेन एनालिसिस या ट्रांजिएंट एनालिसिस है, इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, सॉल्व for I di by dt and d2 I by dt square at t is equal to 0 plus. That means they are asking you to calculate the value of the current, first derivative of the current and the second derivative of the current with respect to time just after closing of the switch. Or they may ask you to find out v dv by dt and d2 v by dt square at t is equal to 0 plus. तो ये मैंने लेक्चर नंबर 25 से 37 में कवर किए हैं। अच्छा, ये di बाई dt का क्या यूनिट रहेगा? सो इसका यूनिट रहेगा एम्पियर पर सेकेंड। d2i बाई dt स्क्वायर का क्या यूनिट रहेगा? तो इसका यूनिट रहेगा एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए t स्क्वायर है और i ऐसा ही है, ये d स्क्वायर है, i का स्क्वायर नहीं किया है, सो i का यूनिट रहेगा एम्पियर और t स्क्वायर है, इसके लिए इधर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अभी ये वोल्टेज है तो इधर वोल्टेज के बारे में इधर तो यूनिट वोल्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा वोल्ट पर सेकेंड एंड ओवर हियर द यूनिट विल बी वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये यूनिट लिखते समय थोड़ा ध्यान दीजिए। लेक्चर नंबर 39 to 56 में ये न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं जिसमें आपको आई ऑफ टी या वी ऑफ टी इसके इक्वेशन आपको बनाने के हैं। Okay, they are not asking you to find out the value of the current at the particular instant, while they are asking you to find out the equation of I of t and v of t. तो लेक्चर नंबर 38 पे क्या है? सो 38 में मैंने ये कवर किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने हम लोग ने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए अपने को पहले। अच्छा, लेक्चर नंबर 38 में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैथ्स मैंने रिवाइज कर दिया है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों चाहिए? तो हम लोग ने जो इक्वेशंस लिखे इधर, तो इधर देखिए ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, इवन दिस इज इन द डिफरेंशियल फॉर्म। सो इसके लिए अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। सो दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कौन से है वो मैंने लेक्चर नंबर 38 में कवर किए हैं। तो ये लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट पढ़िए भी। थैंक यू।